Yes, ma'am. Okay. Now, good morning. First of all, I would like to introduce myself. I'm Shweta Agrawal. I'll be teaching your communication skill paper. Okay. Hopefully, you Yes, all ma'am. had already done with communication skills in your school days. So I'll be starting with that. And before starting our chapter, I would like to tell you the about the book. If you want to refer, there is one book for communication skill from Sahitya Bhavan publication. Okay, if you want to write it down, you just write it down. Communication skill book, Sahitya Bhavan publication. Okay. Yes, It ma'am. is written by N. Gupta, K. Jain, and P. Mahajan. So if you want to refer the book, you must refer this book. We are having many more books for communication skills in our library as well. Or the best thing is online material. Although I'll be giving you links and the PowerPoint presentation or PDF, whatever material I'm having, I'll be providing you. Clear? But if in case you want to Yes, ma'am. learn, you just learn by your own on the internet material or access internet or Google or refer any book what you want to. Okay? Okay, ma'am. Am I clear to you? Yes, ma'am. Yes, Now, ma'am. we'll start with the things. Okay, communication skill. What do you mean by communication? Have you ever heard about the term communication skill? Okay, you should be interactive beta because you are less in numbers, so I want you all to be interactive. Otherwise, it's like I'll be reading the contents and you all are not responding. So I want our class to be interactive. So have you ever heard about the term communication skill? No? Yes or no? मैम कम्युनिकेशन मीन्स होता है कि मैडम हमारे जो वो है जो वर्ड्स है हम जो बात करते हैं किसी से वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मैम वो जा सके हमारे जो कम्युनिकेशंस में हमारे एक्सप्रेशंस वो जो हमारे जो बात करते हैं अपन हाँ जी, हाँ जी. बात करने की स्किल्स Okay. वन पर्सन टू अनदर पर्सन वन पर्सन टू अनदर पर्सन बात करने की skill is communication. Very good. यस Anyone मैम else wants to try? I think so. Only four participants are there now. Okay, I'm happy. Two more is there. Anyone else wants to try? Okay, fine. मैम Yeah. स्किल का मतलब ये होता है एबिलिटी टू डू समथिंग वेल. Ability to do something well. Okay. More or less correct. Any other person wants to try? मैम लाइक Ma'am, ट्रेनिंग from प्रैक्टिसेस. Okay, training practices. Any other person? Okay, fine. What we are doing is what? हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन Right. What we are doing कम्युनिकेशन. is also a communication. Clear? यस मैम. See, you're having many ways. What communication is not only to communicate the message, it is like a series of experiences like hearing, smelling, seeing, touching, taste. These all are also a series of experience for communication. ये भी हमको communicate करती है ना, हम कोई चीज़ सुनते हैं, hear करते हैं, तो वो भी क्या है? Communication है. ठीक है, हम कोई चीज़ स्मेल करते हैं, वो भी क्या है? कम्युनिकेशन. क्योंकि स्मेल से हमको पता चलता है ना कि ये अच्छी स्मेल आ रही है या बुरी स्मेल आ रही है, ये खुशबू है या बदबू है. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ communication. Today I will be giving you the introduction parts. ठीक है, elaborative part will be doing from next class. Okay,
सो बाय सीइंग ऑल्सो, आप कोई चीज देखते हैं तो आपको कोई मैसेज कन्वे होता है ना, दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन। आप कुछ चीज छूते हैं तो देन ऑल्सो यू रियलाइज कि देर इज समथिंग, कोई मैसेज आपको आता है, तो इट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस फॉर कम्युनिकेशन। कोई चीज टेस्ट करते हैं आप तो भी आपको पता चलता है। बेसिकली हम जब छोटे बच्चे थे तो क्लास में आपको टीचर्स पढ़ाते थे सेंस ऑर्गन्स, राइट? सो दिस सेंस ऑर्गन्स इज व्हाट, द सेंस ऑर्गन्स, जब आप कोई सेंस आप करते हैं चीज को और वो सेंस के थ्रू कोई मैसेज कन्वे होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? Now the Yes, ma'am. basic definition, if we'll talk about what we are doing, is what communication, right? So if we'll frame it in the sentence, it is like a technical definition is like a communication skills is the ability to use language, receptive and expressive information. Clear? Communication क्या है? एक ability है language को use करने की, जिससे हम कोई भी information रिसीव करते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इज व्हाट द कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है? फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स और अ क्रिटिकल एलिमेंट इन योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। व्हाट डज इट मीन्स? लाइक विदाउट कम्युनिकेशन स्किल you are not able to communicate your message or your sentence or whatever you want to give the information properly or in effective manner. Like आपने आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा अभी, some of you are very good at expressing yourself, some are not, but communication skill I must say is a very important part of your life. If you are not able to communicate your message properly, अगर आप उसको express नहीं कर पाएंगे properly, तो आपकी personality और career में उसका बहुत असर पड़ता है। So it's not like कि बेटा you will be good in English then only you are able to communicate. क्लियर? कम्युनिकेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है। जो बच्चे हैं वो मोस्टली ये समझते हैं कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि हम इंग्लिश में ही बोलें। इट्स नॉट इंग्लिश में ही बोलें। इट्स कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज़ बोल रहे हैं इट शुड बी क्लियर। जो भी रिसीवर है, जो भी आपको रिसीव कर रहा है, जो भी सुन रहा है, उस तक मैसेज क्लियर पहुंचना चाहिए और आप जैसे भी हो आपको प्रॉपरली एक्सप्रेस करना है, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। ओके? सो इट डजंट मीन्स यू शुड ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, it's not necessary, but as a student you always try to speak in English and frame your sentence in a proper way so that your information will be correct, right? What are the goals of communication now? The goals of communication is to change behavior, to get actions, to ensure understanding, to persuade, to get and give information. Clear? These are what your communication goal. आपके behavior को change करता है communication, आपके action को देखता है, आपके understanding बढ़ाता है, आपको persuade करता है to get and give information. ठीक है? आपके message को convey करने के लिए भी use होता है। There are various ways for communication. The most common ways for communication is what? Speaking, reading, writing, visual image and body languages. ठीक है? हम communication किस किस तरीके से कर सकते हैं? There are many ways, but जो most common होता है ना, हम उसको speaking के through बता सकते हैं. There is one missing part is reading also. Speaking, reading, writing, body language, visual image is what your most common ways to communicate. ठीक है? There are types of communication. These are what introduction beta. In coming chapters, you are having elaborative forms of all such material what I'm teaching you right now. Okay, so the type of communication is what? On the basis of organizational relationship, there are two types of communication: formal and informal communication. Clear? On the basis of flow, there are three types of communication: vertical, crosswise and diagonal, or horizontal. On the basis of expression, we are having three
oral, written and gestures. ठीक है. On the basis of organization relationship मतलब आपके formal and informal. If you are in the organization right now, हम एक online classes पढ़ रहे हैं. We are having what an organizational relationship. I am a teacher and you are a student. Okay, I am teaching and you are learning. तो हमारा communication अभी कैसा चल रहा है बेटा? Formal communication चल रहा है. We are in the formal environment. Clear? जब आप क्लास में अपने दोस्तों से बात करेंगे तब कैसा होगा आपका कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल होगा. या मुझे क्लास के बाहर आप मिलके कोई बात करेंगे तो वो कैसा होगा? इनफॉर्मल होगा. राइट नाउ व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन? Formal communication. Whatever online classes you are having along with your teacher is what formal communication. Now on the basis of flow, मतलब flow यानी direction. On the basis of direction जो है आपके flow में organization में काफी जो होते हैं आपके डायरेक्शंस होते हैं, फ्लो होते हैं, एक हायरार्की होती है. वो कैसी होती है आपकी? वर्टिकल आपका कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, वर्टिकल होता है आपका मतलब खड़ा, क्रॉस वाइज और डायगोनल यानी आड़ा, और ऑरिजेंटल मतलब जो आपका आड़े में सीधा जाएगा. ठीक है, ये हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द हायरार्की ऑफ फ्लो और हायरार्की ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन यू आर हैविंग 3. आप ओरली बोल के बता सकते हैं. लाइकवाइज आई हैव आस्क्ड यू, आई हैड आस्क्ड यू द क्वेश्चन, आपने ओरल कम्युनिकेशन करके मुझे आंसर बताया. ठीक है, आप असाइनमेंट्स देते हैं, वो किसके फॉर्म में देते हैं? रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्म में देते हैं. ठीक है, अगर अपनी ट्रेडिशनल क्लासरूम होती, ऑनलाइन क्लासरूम नहीं होती, हम फेस टू फेस होते हैं, तब आपका गेस्चर मुझे बता सकता था कि वेदर you are interested in my teaching or you are not interested in my teaching. है ना, आपको समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है. आपका गेस्चर मुझे कम्युनिकेट कर देता कि कैसे आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं whatever I am teaching. नाउ देर आर कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन में बैरियर भी होंगे. बैरियर्स यानी रुकावटें. सो ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, देर आर मेनी मोर बैरियर्स इन योर कम्युनिकेशंस, बट द 4 टेक्निकल बैरियर्स आर व्हाट? Semantic barriers, your emotional or psychological barriers, organizational barriers and barriers in superiors. Clear? Barriers मतलब बेटा रुकावट, आपके कम्युनिकेशन की रुकावट. तो ये 4 तरीके की आपकी रुकावट है. क्लियर? सिमेंटिक बैरियर्स जो होते हैं वो आपके किस फॉर्म में होते हैं? सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लियर अजम्पशन, स्पेशलिस्ट लैंग्वेज. इस फॉर्म में आपके सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं. क्लियर? ठीक है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर, प्री मैच्योर इवेल्युएशन होगा, इन अटेंशन होगा, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन होगा, है ना, अनड्यू रिलायंस होगा ऑन द रिटर्न वर्ड्स, डिस्ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेशन होगा, फेलियर टू कम्युनिकेशन. जो कि आपके इमोशन और साइकोलॉजी से जो रिलेटेड होते हैं वो सारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं आपके. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कम्युनिकेशन में क्या होते हैं? है ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी होती है, यानी अगर आपको कोई बात बोलनी है तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकते हैं. फर्स्ट यू टॉक टू योर क्लास टीचर. ठीक है, देन योर हेड एंड आफ्टर दैट योर प्रिंसिपल. सो यू आर हैविंग मेनी मोर कम्युनिकेशन barriers like organizational policy, organization rules and regulation, status relation and complexity in organization. ठीक है, योर पर्सनल बैरियर्स, बैरियर्स इन सुपीरियर लाइक एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर. किसी में आप में होगा भाई मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो मैं उससे बात क्यों करूँ. फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, आप डर के मारे नहीं बोल रहे हैं. लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ अवेयरनेस इज योर व्हाट? पर्सनल बैरियर्स. ठीक है, बैरियर्स इन सबऑर्डिनेट्स, नीचे वालों में क्या होगा? अगर आपसे नीचे वाले अनविलिंग टू कम्युनिकेट, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स. We'll be learning this in details also, okay, in future. Now this is what your communication process. Now what is the communication process? Communication is the process of sending and receiving information among people. Communication एक process है किस चीज का? Information को send और receive करने की people के बीच में.
क्लियर? इसमें हमेशा कम्युनिकेशन में 4 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, सेंडर एंड रिसीवर। हम कैसे हैं, अगर हम अभी की बात करें तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा चल रहा है, मैं सेंडर हूं और आप क्या है, रिसीवर हैं। क्लियर? और सेंडर और रिसीवर में हमेशा एक चैनल होता है जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो मैं सेंडर हूं, हमारे बीच चैनल क्या है, जूम मीटिंग है, और जूम मीटिंग के थ्रू में आप क्या कर रहे हैं, कंटेंट को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ अगर बैरियर होंगे तो बीच में क्या होगा, आपका ये नॉइस आएगा। ठीक है, ये नॉइस दिखेगा आपको बीच में, अगर हमारा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम जाता है तो हमारा वो क्या है, नॉइस होता है। ठीक है, अब सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर को और रिसीवर ने उसको फीडबैक के फॉर्म में वापस किसके पास भेजा, सेंडर के पास। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अगर आपसे पूछती हूँ, as a sender I'll ask you one question, what is communication process, है ना? So from through Zoom meeting you have received this message. Now any one of you kindly answer me whether it is clear or not, this communication process. Any one of you? Students, are you there? My voice is audible to you? Yes, ma'am. यस मैम आ रही है। हाँ, तो अब ये बताइए, आ रही है ना? थैंक यू। तो अब ये बताइए, आप ये डायग्राम बताइए, क्लियर है कि नहीं आपको? Yes, ma'am. It's clear. ये डायग्राम यस क्लियर है? मैम, क्लियर है। क्लियर है, तो उसको एक्सप्लेन Yes, करिए। Yes, ma'am. जिसको क्लियर है वो एक कोई एक्सप्लेन करो बेटा। गलत सही के बारे में नहीं सोचो, है ना? यहाँ पे गलत सही नहीं, यहाँ पे हमको पढ़ना है, हमको सीखना है। सो इट्स नॉट अबाउट कि यू ऑलवेज बी राइट। एनी वन ऑफ यू हु नोज दिस और हु इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, काइंडली लेट मी नो। मैम हाँ, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है सेंडिंग एंड रिसीविंग की, जिसमें पीपल्स के द्वारा की जाती है। इसमें हम सेंडर और रिसीवर, सेंडर मैम इसमें सेंडर होता है, रिसीवर होता है, और उन दोनों के बीच में जो होगा उसमें चैनल चैनल के थ्रू होगा। जैसे राइट, आप हमें कम्युनिकेट कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो आप सेंडर हो गए, और यस, बीच में जो चैनल हो गया वो हमारा जूम ऐप हो गया। रिसीवर जो हम रिसीव कर रहे हैं, मैम इट मीन्स अगर इसमें कोई भी नॉइस वॉइस आती है तो मीन्स क्या, वो फिर मे बी नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है या कुछ बैरियर्स हो सकते हैं, लाइक दैट। ओके। और आपने मुझे आंसर किस फॉर्म में दिया? फीडबैक के फॉर्म में। वॉट एवर Feedback. आंसर यू आर फीडबैक, गिविंग, यस। इट इज फीडबैक। व्हाट्स योर नेम बेटा? मैम माय नेम इज हितेश वाधवानी। रितेश? हितेश मैम, Hitesh. HITESH। Okay, good Hitesh, very good. It's a very good explanation. Rest of the students also try to give the answer like Ritesh, Hitesh, sorry, like Hitesh. है ना? Very यस well मैम। explanation. So thank you so much. Likewise, what we are doing is communication. तो communication जो हम पढ़ रहे हैं subject, it's not only for your passing the exam. It is like you'll have to learn how to communicate with each other. Okay, so it is really very good, and I'm happy that one of the students has given us the answer. Now moving ahead, communication code scheme, like जो मैसेज जाता है सेंडर से रिसीवर के पास, ठीक है, उस जो हमारा सेंडर के साइड होता है वो कैसा होता है, कोड के फॉर्म में होता है ना? कोड इन द सेंस कि वो क्या बोल रहा है उसको हम कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, और जाके जब रिसीवर उसको सुनता है तो वो क्या करता है, उसको डीकोड करता है, यानी समझता है। ठीक है, तो कोडिफाइंग और डिकोडिफाइंग इज द प्रोसेस which is taking place between the sender and the receiver while receiving the message। मतलब मैं जो मेरा बोलना है वो क्या है, कोड है, और जो आपका सुन के समझना है वो क्या है, आपका डीकोड है। अगर रिसीवर उसको समझ नहीं पाता तो वो डीकोड नहीं कर पाता। क्लियर? This is what your coding scheme. Now the communication involves 3 components. The 3 components are verbal message, paraverbal messages, non-verbal
मैसेज. वर्बल मैसेज, द वर्ड्स वी चूज, जो हम बोलते हैं. पैरावर्बल, हाउ वी से दी वर्ड्स, है ना. वर्बल मतलब जो हम वर्ड चूज करते हैं अपने मैसेज को बोलने के लिए. पैरावर्बल मैसेज मतलब हम उसको उस वर्ड्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बोलते हैं. नॉन वर्बल मैसेज यानी थ्रू आर body language. Right now I am not able to communicate through my body language because it's an online class. ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू नॉन वर्बल मैसेज हमारे कन्वे होते हैं. दीज थ्री कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू सेंड क्लियर और कंसाइज मैसेज. आपके पास क्लियर और कंसाइज मैसेज भेजने के लिए ये कंपोनेंट्स यूज होते हैं. एंड रिसीव एंड करेक्टली अंडरस्टैंड मैसेज सेंड टू अस. सेंडर की तरफ से क्लियर और कंसाइज मैसेज होना चाहिए, कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं. और रिसीवर के एंड पे वो रिसीव कर पाए और करेक्टली अंडरस्टैंड कर पाए वो मैसेज को. दिस इज व्हाट द basically the communication skills components help us. Till here you are clear with the things? Anyone is having any doubt till here? Any student is having any doubt? No, ma'am. Very good. Now I'll stop my lecture here. Tomorrow we'll be having continuation of this lecture as the limit is now exceed. So within 5 minutes the Zoom meeting will be over. Now I Madam? want your attendance. Okay. Yeah. हेलो, Yes. I'll be प्रमोद तिवारी बोल रहा हूँ. Yes, beta. सभी स्टूडेंट ने बोला है कि सबको समझ में आ गया है, Okay. और मेरे को नहीं लगता कि सबको समझ में आया है. Okay. So that's why I'm asking you, no, कि अगर हाँ. आपको नहीं समझ जब में टीचर आया है तो you'll जब ask टीचर me the क्या होता question. है, हेलो, Yes. जब टीचर है क्या सब स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं, हाँ जी. बोल तो देते हैं कि हाँ आया, और Okay. बोला सिर्फ एक बच्चा है, हितेश. Okay. So है ना? your name is Pramod, no? You're हाँ, student प्रमोद or तिवारी parent? जी. आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी. हाँ जी. आपको समझ में आया कि नहीं? नहीं, मेरे को देखे कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया है. अच्छा, तो जो समझ में नहीं आया है वो आप जी, पूछिए. मैं आपसे बात करूंगा तो मैं मेन क्वेश्चन भूल जाऊंगा. नहीं नहीं, हेलो, आपको if you are having any doubt kindly ask me. तो क्या है, आपने आपका एक्सप्लेन करने का तरीका तो बहुत अच्छा है, Okay, thank you. पर क्या है, सब बच्चों ने बोल दिया हाँ हमको समझ में आ गया. हाँ जी. मेरा सभी से ये है पूछना कि यदि समझ में सबको आया है तो सब 2-2 मिनट में समझाए ना, क्या समझ में आया. एक ने तो समझा दिया, ठीक है, उनको हम समझ में आया. Okay. अब बाकी सबको 2-2 मिनट आप दीजिए, सब लोग बताएं क्या समझ में आया. प्रमोद, पहले आप बताइए कि आपको क्या समझ में आया, then rest of मैंने तो them will बताया, explain. मेरे को तो समझ में आया है कि हाँ कुछ आप जो कम्युनिकेशन वगैरह जो बता रही हैं वो 50% मेरे को समझ में आया जो आप समझा रही हैं. हाँ जी. और इसलिए मैंने ये सवाल रखा ये है कि आपने डायग्राम समझाया तो समझ में बहुत आया आपको? आप ये डायग्राम, मेरी स्क्रीन देख सकते हैं आप हाँ, प्रमोद? हाँ देख रहा हूँ. हाँ, आप ये डायग्राम देख के एक्सप्लेन करिए. बताइए ये डायग्राम में क्या फैक्टर्स हैं? मैडम ये फीडबैक जो है आपने पूरा सेंटर से पढ़ाने प्रमोद. जी, हाँ जी. इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया मैडम, ये मैं फिर से समझना चाहूंगा आपसे. हाँ नहीं नहीं, आप दिख रहा है जो दिख रहा है ना, बस वो बताइए. हाँ, ये तो सेंडर रिसीव हाँ. नॉइस, इसमें जो अड़चन आ जाती है इसके बारे में आपने बताया है. हाँ जी. आप सेंड कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ा रही हैं वो हम तक पहुंच पा रहा है, हाँ जी. इसके बारे में आपने समझाया है ना. हाँ, तो ये तो भी जो समझ आप, में आया. मैं जो हूँ वो सेंडर हूँ, आप जो है वो जी, क्या है? रिसीवर है, क्या है आप? रिसीवर. रिसीव कर. हाँ, ठीक है. अब अगर ओके. बीच में कोई नॉइस आती है या कोई डिस्टरबेंस आता है या नेटवर्क प्रॉब्लम जाता है, वो क्या है आपका? नॉइस. कोई जी, भी रुकावट आपकी क्या है? नॉइस है. नॉइस. ठीक है. और आप जो हाँ, मुझे आंसर दे रहे हैं ना, जो भी मैं पूछ रही हूँ, वो क्या है आपका? फीडबैक है.
फीडबैक, ओके। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस ऐसे ही होता है। मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, वो एक माध्यम से जा रहा है। अभी जैसे क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो क्या माध्यम है हमारा? जूम। जूम ऐप है। और अगर हम ऑनलाइन नहीं होते तो हमारे एक दूसरे के पास बात पहुंचाने का क्या तरीका होता है? किससे पहुंचती है? हवा, एयर। एयर इज द मीडियम। जब हम आमने सामने होंगे ना, तो एयर इज द मीडियम। तो अभी हमारा चैनल क्या है? जूम है। और आप क्या कर रहे हैं? मेरे मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको वो चीज समझ में आ रही है तो आप मुझे फीडबैक के फॉर्म में वापस आंसर कर रहे हैं। अब ये कम्युनिकेशन प्रोसेस समझ में आई आपको? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच प्रमोद। प्रमोद का पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि इफ यू आर हैविंग एनी डाउट स्टूडेंट्स, so kindly it's an humble request to all of you that kindly ask, because see, online classes are good, but there are certain kinds of barrier also in the online classes, because you're not here face to face, right? Maybe from December or January we'll be having face to face classes. So जैसे प्रमोद को नहीं समझ में आया, उन्होंने पूछा तो मैंने उनको अगेन समझाया। ठीक है, और दोबारा समझाने में बाकी के जो बच्चे हैं उनको भी समझ में आया होगा फिर से। ठीक है, तो likewise you'll do and we'll have a future class like this. Okay, thank you Pramod. Anyone else is having any doubt, or else I'll stop with my class? No ma'am. No doubt? Okay, thank you so much. So you will join for the next class. Today I'm ending with my class. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.